Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello dear students. So today I'm here with another subtopic that is assisted reproduction technology, जिसको बोलते हैं ART. This topic comes under this subtopic comes under the topic infertility, which we discussed it earlier. So dear students, we discussed it infertility, that is the simply inability of a couples to have a children in spite of unprotected sexual cohabitations. So these infertility problems can be treated through corrective treatment by the specialist working in this area, such as infertility clinic. But there is some cases where such corrective treatment is not possible. In that cases, there is a special technique that is known as assisted reproduction technology or ART जिसको बोलते हैं. तो लास्ट टाइम हमने देखा कि that was ART. There is many sophisticated techniques. The prominent one are test tube baby program, that is gamete intrafallopian transfer gift, intracytoplasmic sperm injection, ICSI, artificial insemination technique AIT. So we will discuss one by one. So इससे पहले इसमें एक सब टॉपिक कभी पूछते हैं एग्जाम्स में. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट क्लासेस में. सिंपली इसमें हमने देखा कि दैट इज द बेबी विच इज conceived in a cultural dish, but their development occurs in the uterus of the female, and the baby that develops or born, that baby are called test tube baby. तो उसमें कभी पूछते हैं surrogate mothers. तो what is surrogate mother? The developing embryo can be inserted into the uterus of another female. अगर कपल्स के यानी दैट वाज फीमेल पार्टनर्स में प्रॉब्लम्स है कि देयर इज नॉट सूटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, कि वहां से क्या होते हैं एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं कि दूसरे फीमेल्स में उनके नॉर्मल यूट्रस में, वेयर द नॉर्मल डेवलपमेंट ओकर्स एंड द नॉर्मल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ gestation period they are delivered to a normal baby. So such baby are called such baby normal baby, such female which replace the real mother, that mother is called surrogate mother. उस मदर को बोलते हैं surrogate mother, जो एक्चुअल मदर को रिप्लेस करते हैं. वहां पे एम्ब्रियो जो बना उसी मदर से लेके फिर उसमें ट्रांसफर करके वहां पे जो डेवलपमेंट करते हैं, सच मदर्स इज नोन एज surrogate mother. उसको बोलते हैं surrogate mother. So our next जो that was ART technique है, that is gift, gamete intrafallopian transfer. तो what is gift हम देखते हैं. that is gift की that was name indicates gamete intrafallopian transfer कि जहां पे क्या होता है, just gift one, gamete intrafallopian transfer, it is done in those female, उन फीमेल्स में करते हैं जहां नॉर्मल ओवम का डेवलपमेंट नहीं होता, बट लेकिन उनका जो फेलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है दैट इज सुटेबल टू दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. तो उसमें क्या करते हैं गिफ्ट में कि नॉर्मल दैट ओवम इज सर्जिकली रिमूव इट फ्रॉम द डोनर फीमेल. दैट नॉर्मल जो ओवम है रिमूव इट surgically from the donor female and is transferred to fallopian tube of such female. यानी कि जहां पे उस वुमेन्स में यानी ओवम नहीं बना सिर्फ, लेकिन उसका जो फेलोपियन ट्यूब यानी यूट्रस हेल्दी है, सो उस वक्त क्या करते हैं कि किसी दूसरे फीमेल से सर्जरी के दौरान वहां से ओवम को रिमूव किया और इस फीमेल्स में डाला, एंड आफ्टर दैट दीज फीमेल get sperm through copulations from their husband, and there is normal fertilizations occurs. After fertilizations there is normal development of the embryo occurs, and after completion of gestation they are delivered to a normal baby. तो this technique is called gift, जिसको बोलते हैं gamete intrafallopian transfer gift जिसको बोलते हैं. So dear students, I think gift के बारे में आप लोगों को क्लियर हुआ होगा about this. So next our that was technique is ART, that is next our technique is this ICSI, intracytoplasmic sperm injection. So I think इसको रब करें.
Next, our technique is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. तो इसमें क्या करते हैं इस टेक्निक में कि नाउ इफ देयर इज अ प्रॉब्लम्स इन बोथ द मेल एंड फीमेल्स, कि उसमें क्या करते हैं दैट ओवम इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोनर फीमेल, ओवम को रिमूव किया, एंड आफ्टर दैट ओवम इज, उसमें फाइन नीडल्स, सर्जिकल नीडल्स इसको बोलते हैं, उसके द्वारा स्पर्म को वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं या इंजेक्ट करते हैं. दैट इज स्पर्म इज इंजेक्टेड इन सच ovum, this is the ovum, intracytoplasmic sperm injection. नेम इंडिकेट्स कि इस ovum के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को थ्रू फाइन नीडल्स के द्वारा इंजेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, उसी में फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देयर इज फॉर्मेट ऑफ जाइगोट, एंड आफ्टर दैट दिस जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं थ्रू जिफ्ट, जिफ्ट के द्वारा ट्रांसफर करते हैं इनटू द फीमेल यूट्रस, इनटू द फीमेल यूट्रस, जिसको बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं. सो इसके बाद यूट्रस में पहुंचने के बाद देयर इज नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गस्टेशन दे डिलीवर्ड टू ए नॉर्मल बेबी. सो सच टेक्निक इज कॉल्ड ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, कि जहां पे एक बार हम फिर से डिस्कस करें कि दैट इज सिंपली ICSI, कि जहां पे ओवम को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द डोनर फीमेल से और स्पर्म को उनके हस्बैंड से ले लेते हैं, एंड स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड थ्रू दिस फाइन नीडल्स, सर्जिकल फाइन नीडल्स के द्वारा हम इसको इंजेक्ट करते हैं विद इन द ओवम के अंदर. वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट वहां पे बनता है, एंड आफ्टर दैट दिस जाइगोट थ्रू जिफ्ट के द्वारा इट इज ट्रांसफर टू फीमेल यूट्रस, एंड देयर इज नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द fetus and fetus. Such technique are called ICSI, intracytoplasmic sperm injection इसको बोलते हैं. So I think clear हुआ होगा dear students आपको इस that's this topic, that is intracytoplasmic sperm injection. Next, our technique is fourth one, that is artificial insemination technique. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. सो नेम इंडिकेट AIT, सिंपली इसमें क्या होता है कि दैट वाज इन दिस केस ओकर्स इन दोज मेल्स, यानी जहां पे कपल्स, फीमेल तो नॉर्मल होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो होता है मेल में होता है. कि प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि दैट मेल इज अनएबल टू इंसेमिनेट और कॉपुलेट, और इनमें केसेस होता है दैट मेल में लो स्पर्म काउंट होता है, उसकी इजैकुलेशंस में नॉर्मल स्पर्म काउंट से कम होता है, लो स्पर्म काउंट होता है, और इन हैविंग इंसेमिनेट और लो स्पर्म काउंट जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मी इन मेल में ओलिगोस्पर्मी या लो स्पर्म काउंट होने की वजह से, या उन मेल में क्या होता है कि दे आर अनएबल टू इंसेमिनेट, यानी वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है फीमेल में, उस वजह से दैट स्पर्म इज नॉट रीच्ड एट द प्रॉपर साइट. तो उस वक्त क्या करते हैं, दैट सीमेन इज कलेक्टेड और स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम दैट मेल और दैट हस्बैंड एंड is introduced through a fine tube or catheter into the uterus of his wife or donor female, and after that there is normal fertilization होता है. but one should कि यहाँ पे एक चीज को ख्याल करना है कि that was कि वो टाइमिंग, that proper टाइमिंग की जहाँ पे रिलीज ऑफ होगा that is ovulation का जो टाइम पीरियड होता है अराउंड 14 days ऑफ menstruation cycle, उस टाइम पीरियड को फिर वो करके फिक्स करके फिर हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, उसी हस्बैंड के स्पर्म को थ्रू एक कैथेटर और ट्यूब के द्वारा वहां पे इंजेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट देयर
देयर इज नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में, फर्टिलाइजेशन के बाद देयर इज नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन दे डेवलप टू ए नॉर्मल बेबी चाइल्ड, तो सच टेक्निक इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन technique. So these are some of the sophisticated techniques that is used in AIT, artificial, that is assisted reproduction technology, to have a couple, to have a children to a couple which is not in the normal cases. So dear students, all these techniques needs very highly precision handling. इसमें बहुत एहतियात करना है in sterilized condition, even though it needs a highly expert professionals इसकी जरूरत है इस टेक्निक को करने के लिए, even though it is very cost effective because the instrument is so expensive, so it's very cost effective. इसलिए so this technique is present only in few center in our country. कुछ ही country में, कुछ ही center में ये वाला टेक्निक्स करते हैं, एंड इट इज अवेलेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स, कुछ ही लोगों के लिए है. इसके अलावा आवर सोशल फैक्टर, आवर रिलीजियस फैक्टर्स इसमें आ जाता है, आवर इमोशनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एंड दिस एथिक्स आल्सो कम्स हियर. उस वजह से these things provides hurdles in adoption of these techniques. So these are all about this infertility and assisted reproduction technology. So dear students, our next topics under this is amniocentesis. 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 It is a subtopic under this कि amniocentesis क्या होता है कि that was transabdominal aspiration of fluid from the amniotic sac of the fetus. Simply, what is this amniocentesis? It is a transabdominal aspiration of fluid from the amniotic sac of the fetus. तो already dear students आपने पढ़ा हुआ है about this the embryo development में आपने देखा कि that was जो extra membrane चार था, that is chorion, amnion, allantois and yolk sac, और embryo को जो cover किया हुआ था that is covered by this amniotic fluid. So that was हमने देखा कि this is the simply अगर हम diagrams देखें, so this is the uterine wall. And this is the uterine wall, and this is the abdominal wall, and here the embryo is present. Embryo is present, and this is the placenta that connects through the uterine wall. This is the embryo. This is the embryo, and this is the uterine wall. And this embryo is suspended. ये जो embryo होता है that is suspended in the amniotic fluid. This blue one is the amniotic fluid where cells are present. This is the amniotic fluid, amniotic sac, amniotic sac with fluid, amniotic sac with fluid. So here's a mucoid plug. What are the uses of use? यानी क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है amniocentesis का? So amniocentesis simply हमने देखा कि ट्रांस एब्डोमिनल की एस्पायरेशंस ऑफ फ्लूइड, यहां से फ्लूइड को ड्रा करते हैं थ्रू दिस सर्जिकल नीडल्स. एक फाइन नीडल्स होता है इसके द्वारा, दैट फ्लूइड इज sucked. This is the fluid, blue color. This is the fluid. That's the amniotic fluid. So transabdominal aspiration of the fluid, that is the sucking of fluid, or that is taking of fluid from the amniotic sac. This is the amniotic sac containing cells, fluid from the amniotic sac of the fetus, that is called amniocentesis. What are the use? क्या करते हैं? It is a prenatal diagnostic technique. It is a prenatal diagnostic technique. किस लिए?
for diagnosis of that is genetic disorder if any in the fetus. तो सिंपली what are the this amniocentesis use? तो हम कह सकते हैं it is a prenatal diagnostic technique. Prenatal means before birth. इस टेक्निक को हम यूज करते हैं बर्थ से पहले, that is the within the womb of the mother. किस लिए करते हैं? For जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर इफ एनी इन द फीटस. खुदा ना खास्ता अगर उस फीटस में कोई जेनेटिक डिजीज अगर मौजूद है, खुदा ना खास्ता, तो उस डिजीज को पता करने के लिए बर्थ से पहले जो करते हैं that is technique is called amniocentesis. उस टेक्निक को बोलते हैं amniocentesis and that is used किस लिए? for genetic disorders. अगर कहीं पे है congenital defect, खुदा ना खास्ता कोई लायाज कोई genetic defect है, उसको हम पता करते हैं this amniocentesis के द्वारा. So what are their procedure? कि कैसे करते हैं procedure? What are the procedure for amniocentesis? कि देखा डायग्राम्स में आपने this embryo is bathed इन द एमनियोटिक कैविटी, यानी एमनियोटिक कैविटी जो फ्लूइड होता है उसी में यानी ये बात करते हैं. तो ये कब करते हैं? इट्स डन इन अराउंड 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. इसके बाद नॉर्मल नहीं कर सकते हैं. तो तकरीबन इतने 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं कि पहले थ्रू ए स्पेशल दैट इज मशीन जिसको बोलते हैं सोनोग्राफी. तो सोनोग्राफी के दौरान हम क्या करते हैं? पहले यानी डिटेक्ट करते हैं फीटस की पोजीशन को, प्लेसेंटा की पोजीशंस को, इनको डिटेक्ट करते हैं सोनोग्राफी के द्वारा. इसके बाद फाइन जो सर्जिकल नीडल्स है, दिस इज द सर्जिकल नीडल, इन नीडल्स को पास करते हैं किसके द्वारा? थ्रू दिस एब्डोमिनल वॉल. दिस इज द एब्डोमिनल वॉल. इसको दो लेयर को क्रॉस करते हैं, एक एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करते हैं, दूसरा यूट्राइन वॉल. दिस इज द यूट्राइन वॉल. यूट्राइन वॉल को क्रॉस करके फिर यहां से फ्लूइड को सक करते हैं. कहां से? एमनियोटिक कैविटी के फ्लूइड को सक करते हैं. एंड दिस फ्लूइड कंटेन्स फ्लूइड इन एडिशन टू सेल्स ऑफ द फीटस. इनमें सेल्स ऑफ फीटस के स्किन से स्लॉट हुआ होता है, यहां पे सेल्स होते हैं, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकला हुआ सेल्स यहां पे होता है. सो इसके द्वारा इन सेल्स को क्या करते हैं? दैट सकेट दिस एमनियोटिक सेल्स इसके अंदर होते हैं. इस सेल्स को ले लेते हैं थ्रू दिस फ्लूइड के द्वारा इस सिरिंज से. इसके बाद क्या करते हैं? दैट सेल्स इज एग्जामाइन इट विद इन द लेबोरेटरी. उन सेल्स को क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं. किसके लिए? फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई जेनेटिक, बहुत सारे जेनेटिक डिजीज आप पढ़ोगे भी कि फॉर एग्जांपल सच एज डाउन सिंड्रोम, दिस आर जेनेटिक डिसऑर्डर. डाउन सिंड्रोम बहुत सारे हैं. और फॉर एग्जांपल डिजीज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या दैट इज टर्नर सिंड्रोम. दीज आर सम ऑफ द सिंड्रोम एग्जांपल्स की खुदा न खास्ता इन सेल्स को फिर लेबोरेटरी में इनका क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं थ्रू कैरियोटाइपिंग, यानी उसकी क्रोमोसोम्स को अरेंज करके पढ़ते हैं कि उन क्रोमोसोम्स में कोई ऐसा डिफेक्टिव जीन्स तो नहीं है. सच फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी होता है, हमारे क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी हो जाता है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें फॉर एग्जांपल XY टाइप आ जाता है. नॉर्मल फीमेल में मेल में XY होना चाहिए था और X का एडिशन होता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ये तो नहीं है. या X0 कंडीशन, फीमेल में XX होना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है? एक X गायब हो जाता है, सिर्फ एक ही X रहता है, जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम. दिस इज द डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स. इस तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है. तो इन डिफेक्ट को पता करते हैं थ्रू दिस एमिनोसेंटोसिस के द्वारा कि इफ दिस डिफेक्ट इस खुदा न खास्ता यहां पे नहीं हो, इसलिए पहले ही पता करते हैं.
इफ खुदा न खास्ता दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन दिस फीटस, अगर इसमें इस फीटस के सेल से हमें एग्जामिन करके पता चला कि दिस फीटस इज गोइंग टू सफर फ्रॉम कंजेनाइटल डिजीज सच एज इनक्यूरेबल कंजेनाइटल डिजीज सच एज डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हाँ, सो अगर खुदा न खास्ता पता चले इफ दिस इज सफर टू दिस इनक्यूरेबल डिजीज, सो द पेरेंट्स हैव ए क्लिनिकल जस्टिफिकेशन फॉर एबॉर्शन। तो इनको एक जस्टिफिकेशन मिलता है एबॉर्शन के लिए, डॉक्टर इनको एडवाइस करते हैं यू कैन अबॉर्ट द चिल्ड्रन बिकॉज दिस एम्ब्रियो और दिस फीटस इज गोइंग टू सफर फ्रॉम ए इनक्यूरेबल जेनेटिक डिजीज। तो इनको पता करने के लिए दिस टेक्निक is done, that is called amniocentesis, इसको बोलते हैं amniocentesis टेक्निक्स हम करते हैं। So once again अगर थोड़ा हम इसको ओवरव्यू फिर से बार्ड व्यू लें तो what is amniocentesis? That is the transabdominal aspiration of fluid from the amniotic sac of the fetus। वहां से हम amniotic sac से fluid लेते हैं, हाँ, through crossing this abdominal wall and uterine wall। ताकि किस लिए लेते हैं? यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एमिनोसेंटेसिस? इट इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट इज डन बिफोर बर्थ, यानी बर्थ होने से पहले करते हैं इस टेक्निक को। फॉर किस लिए करते हैं? फॉर डिफेक्ट और एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द फीटस। खुदा न खास्ता अगर उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसको पता करने के लिए, अगर उस फीटस में है उसको पता करने के लिए दिस टेक्निक इज डन एमिनोसेंटेसिस। एंड प्रोसीजर कैसे करते हैं? सो हमने देखा विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी, एक मशीन होता है जिस तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, इट इज ए दैट वाज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इस्तेमाल करते हैं सोनोग्राफी में। उस सोनोग्राफी मशीन्स के द्वारा दैट इज पहले हम उसको एग्जैक्ट पोजीशन पता करते हैं, फीटस का पोजीशन, उसकी प्लेसेंटा के पोजीशन को पता करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड्स कहां पे है उसको पता करते हैं, एंड इसके द्वारा फिर सिरेंज इंजेक्ट करते हैं। दिस इज द सर्जिकल नीडल्स और सिरेंज इंजेक्ट करके वहां पे कहां तक ले जाते हैं? इसको एमनियोटिक फ्लूइड में ले जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि इट कांट टच टू द फीटस, उस वजह से फीटस में एबनॉर्मल हो सकता है। सो इट इज अ वेरी सेंसिटिव दैट इज टेक्निक कि इसको बिल्कुल यहां फ्लूइड तक लेना है, फ्लूइड्स के बाद इसको सक करना है, एमनियोटिक फ्लूइड को सक करना है यहां पे, एंड सक करने के बाद उस वहां से उसमें ऑलरेडी सेल्स भी प्रेजेंट होता है, फीटल सेल्स, क्योंकि उनकी स्किन से स्लॉट हुआ होता है एंड सम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्लॉट होता है। दैट सेल्स वहां पे लेके फिर विद इन द लेबोरेटरी इस सेल्स को एग्जामाइन करते हैं कि उसको कैरियोटाइपिंग करते हैं, उसका कैरियोटाइपिंग, that was karyotyping means that is the arrangement करते हैं, क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं, एंड अरेंज करने के बाद पता लगाते हैं कि इफ देयर इज दिस सेल्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो खुदा न खास्ता अगर उनको पता चलता है कि इसमें इस फीटस में कोई एबनॉर्मलिटीज आने वाला है, सो द पेरेंट्स हैव ए क्लिनिकल जस्टिफिकेशन फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन के लिए उनको जस्टिफिकेशन मिलता है एंड दे कैन अबॉर्ट द चिल्ड्रंस। लास्टली व्हाट आर द that was misuse of amniocentesis. Misuse of amniocentesis. Even though this technique is very useful, बहुत ही यूजफुल है, लेकिन बट दिस टेक्निक इज मिसयूज्ड बाय सम पीपल्स। कैसे? बिकॉज इस टेक्निक के द्वारा देयर इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन सेक्स। इसके द्वारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी होते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी एट दिस स्टेज में आप सेक्स का भी पता लगा सकता है कि वेदर दिस एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी मेल वन और ए फीमेल वन। सो बहुत सारे सोसाइटी में, आजकल सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि दिस टेक्निक इज यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल। इट इज यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल, जिसको बोलते हैं फीमेल फेटिसाइड्स। सो this technique is misused by some peoples. It is used to determine the sex of the fetus. उस वजह से कभी कभी सोसाइटी में there is a female feticide केस आ जाते हैं कि जहां पे नॉर्मल फीटस को, यानी नॉर्मल फीमेल होने के बावजूद, फीमेल होने पे that fetus can be killed, such as known as the female feticides, and
उस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से दैट इज गवर्नमेंट ने इस एमिनोसिंथेसिस पे बैन लगाया है फॉर दिस सेक्स डिटर्मिनेशन। इसलिए आपने देखा होगा जहां पे भी आप क्लिनिक्स में जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन्स जाते हैं वहां पे लिखा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन्ड। हाँ, उस पे फाइन भी लगते हैं। सो इसलिए एमिनोसिंथेसिस को फॉर द यूज ऑफ दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इट हैज बीन बैन्ड। सो इट इज मोस्टली, इसलिए मेनली इट इज पर्पस यूज किस लिए करते हैं, फॉर बेनिफिशियल वन। सो दैट इज यूज इट टू, दैट इज फॉर जेनेटिक डिफेक्ट अगर किसी में पता करना है, प्रीनेटल यानी पैदाइश से पहले इसको पता लगाना है, तो उस पर्पस के लिए दिस एमिनोसिंथेसिस इज यूज्ड एंड इट इज डन। हमने देखा कि पीरियड कब करना है एमिनोसिंथेसिस, आप कभी भी इसको नहीं कर सकते हो प्रेगनेंसी में। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस 14 to 15 वीक, यानी प्रेगनेंसी के तकरीबन 14 से 15 वीक में इस एमिनोसिंथेसिस टेक्निक को ऑपरेट करते हैं टू फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इफ देयर इज प्रेजेंट इन द फीटस। उस के लिए आप इसको यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा कि इट इज यूज्ड, मिसयूज इट, because this technique is also used to determination of sex. So society में कुछ ऐसे सोसाइटी होते हैं जहां पे it is used, misused to kill the normal female. So female feticides का भी केस आ जाते हैं. So this should not be done. इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज पे बैन लगाया है for sex determination. तो dear students, this is all about amniocentesis. So we will take next topic in the next classes. Thank you very much.